Yeah, good morning, everyone. We were already discussing the basic idea of complex numbers, and let's continue with few more problems based on it. This was the last question. In fact, a set of few questions were given to you in your homework. Let me quickly talk about this question. One of the student messaged and asked about this solution. One of the method is simply you open the cube in the numerator, a plus b whole cube, and the same way in the denominator, and then followed for the second term. But remember, that will make it a very calculative. We are going to make use a very simple idea. Check this out. Inside the bracket only, rationalize. So of course the rationalizing factor would be 1 plus iota. And for the second term, clearly we'll follow the same rule. And now the rationalizing factor will be clearly 1 minus iota. And this is equals x plus iota y. And this is the most important first step of this question. Further, let me simplify. So this is 1 plus iota whole square divided by a minus b into a plus b will make it simply 1 plus 1. Iota square is minus 1 and this whole cube minus similarly 1 minus iota का cube over 1 plus 1 and this this is यहाँ 1 minus iota का whole square और बाहर पूरे का cube हो रहा है. Let us simplify this square. This is a plus b का whole square. In the first term, the numerator. A square plus b square plus 2ab over 2 iota square minus 1. तो वो यूज कर लिया है. फिर से a square plus b square minus 2ab और ये divided by 2 whole cube. If you note carefully, 1 से 1 cancel और 2 से 2 cancel. तो iota cube minus iota का cube and this is equal to now x plus iota y. iota cube कितना होता है? iota cube याद हो चुका होता है. iota square into iota which is minus iota. ये माइनस की पावर 3 है तो वो तो माइनस माइनस प्लस कर देता, बट फिर से ये माइनस आयोटा आ जाता. सो नाउ वन कैन इजीली नोट व्हाट हैपेंड. minus 2 iota is x plus iota y. That is x plus iota y 0 minus 2 iota लिख लेते हैं इसे. So that comparing say x will be 0, y will be minus 2. बट याद रखिए रिक्वायर्ड आंसर आपसे किस फॉर्म में पूछा था? x कॉमा y. सो द आंसर शुड बी एक्सप्रेस्ड in the following form, the way it is expected and asked in the question. एंड होमवर्क में सिर्फ सोचिए या करके देखिए, अगर मैं डायरेक्ट क्यूब ओपन करने शुरू कर देता, इट विल बिकम हाईली कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम. तो एक टेक्निक है, स्मार्ट टेक्निक इन अ वेरी फर्स्ट स्टेप ही जो मैंने अप्लाई किया है, रैशनलाइजिंग यूजिंग इट्स कॉन्जुगेट. तो वो विद प्रैक्टिस आपको ध्यान रहना चाहिए. नाउ दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. डू इट इन योर होमवर्क. डायरेक्ट एलसीएम एंड सिंप्लीफाई एंड शो इट इज अ रियल. का मतलब क्या हो जाएगा? इफ z इज a प्लस आयोटा b, रियल होने का मतलब क्या हो जाएगा? दैट b शुड बी 0.
इसमें इमेजिनरी वाला पार्ट आएगा ही नहीं, आयोटा की टर्म होगी ही नहीं, तो वो सिंपल एलसीएम से क्लियर हो जाएगा। फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ दिस, अगेन ओनली द बेसिक आइडिया। ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स देन डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अल्टीमेटली एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। So if I simplify this in a usual manner, quickly आप ब्रैकेट ओपन करके देख लीजिए और याद रखिए आयोटा स्क्वायर इज -1, तो माइनस माइनस विल मेक इट प्लस, और नीचे आ गया माइनस माइनस प्लस, so it is simplified to 12 plus 5 iota combine like terms and 4 plus 3 iota. But it is still not in standard form. Again I need to go for one more step, 4 minus 3 iota से rationalize कर देंगे, 48 minus 36 iota plus 20 iota and iota square is -1, minus minus will make it plus, और नीचे clearly 16 plus 9 आ जाएगा। So it is now a simple calculation, 63 minus 34 iota by 25. I can write this as 63 by 25. Yes. तो वो 20 आयोटा नहीं होगा? विच पर्टिकुलर टर्म बताओ, कहाँ गलती हुई है? तो 48 माइनस 36 आयोटा प्लस 20 आयोटा होना चाहिए। एक मिनट, मैंने लिखने में फिर कोई, ओ यस वो लिखा, यस 20, राइट। तो ये कितना आ गया यहाँ पर, बस ये -36 प्लस 20 हमें दे देगा -16, तो ये यहाँ -16 बाई 25 आयोटा आ जाएगा। अब क्वेश्चन देखिए, कॉन्जुगेट पूछा था, तो देयरफॉर z कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट का मतलब सिर्फ आयोटा की टर्म प्लस आयोटा कर देते हैं, साइन विल चेंज, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। सो बी अटेंटिव, अगर कहीं मेरे से भी गलती एक लिखने में हो रही है तो यू शुड हेल्प मी आउट टू करेक्ट दिस मिस्टेक। In fact, to find the conjugate, there is the alternative method also, wherein I can make use of the direct formula. जैसे ये मैंने फॉर्मूला वैसे बाद में बताया है, अभी आफ्टर 2-3 स्लाइड शायद आएगा। If this is z, to find its conjugate means ये, और वो इस हर एक टर्म का कॉन्जुगेट कर दीजिए लाइक दिस, फिर नीचे कॉन्जुगेट हो जाएगा एंड 2 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट। और ये एक प्रॉपर्टी है कॉन्जुगेट की कि ये इसका कॉन्जुगेट, ये हमें पता ही है, 3 प्लस 2 आयोटा, 2 माइनस 3 आयोटा, आयोटा की जगह माइनस आयोटा कर दीजिए। बस अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, रैशनलाइज करिए, डेफिनेटली यू विल गेट द सेम आंसर। So this is the alternative approach. Before we move on, quickly please mark your attendance in the chat box, everyone.
Okay, check this out. Express the following in the form of a plus iota b. तो यूजुअल मेथड है, सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर योर होमवर्क. आप चेक करिए. जैसे फर्स्ट पार्ट है, अगेन आई एम नॉट सॉल्विंग, टाइम इज नॉट परमिटिंग, और बहुत सिंपल है. रैशनलाइज कर दीजिए, सिंपल. सेकेंड पार्ट एक्चुअल में ये लिखा हुआ है, और फिर इसे आप रैशनलाइज कर देंगे इससे. थर्ड हमें डायरेक्ट पता है, 1 प्लस √2 आयोटा से रैशनलाइज. अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन, reduce this to the form of a plus iota b and then find its modulus. तो अगर आपके पास ये z रहा है, अगेन आई एम नॉट सॉल्विंग इट, आप सिर्फ अपने आप सॉल्व करेंगे. अब मुझे अलग अलग टर्म को रैशनलाइज की रिक्वायरमेंट नहीं है. डायरेक्ट एलसीएम एंड सिंप्लीफाई. Open the square in a usual manner. You will get the value of z as some new complex number, and you can easily write down its modulus. So again, a simple question to be continued by you in your homework. और एक बार इस क्वेश्चन को समझिए. If anyone leaves the class because of the network issue, once you join again, do write it in the chat box that due to network issue I was out of the class and I have joined now. Anmol. Okay, so find the find the least positive integer m, least positive integer for which this condition holds true. This is a simple question, और ये आपके सारे एनसीईआरटी मिसलेनियस के क्वेश्चंस हैं. So how I am going to start this? I started with a one very similar question. ब्रैकेट के अंदर ही रैशनलाइज, so that it will be 1 plus iota whole square और इसकी पावर m, और नीचे कितना आ जाएगा 1 plus 1 और इसकी पावर m. ऊपर स्क्वायर खोल दीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे एक्चुअल 2 ही आ रहा है. मैं एक साथ पावर m कंबाइन ही कर देता हूं. So that 1 से 1 कैंसल, 2 से 2 कैंसल. Iota power m is 1. What is the final answer? So 0. 4. Least or 4. positive. 0 is neither positive nor negative. 4. Your required answer. तो 0 सेटिस्फाई तो कर रहा है कंडीशन को, बट फिर क्वेश्चन में तो पॉजिटिव टर्म यूज हो गई थी ना, इसीलिए ये छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान रखिए. पॉजिटिव है तो इट शुड बी 4. 8 विल ऑल्सो सेटिस्फाई, 12 विल ऑल्सो सेटिस्फाई, बट आपको लीस्ट बताना है उसमें से. सो द यूनिक आंसर इज देयर एंड दैट इज 4. Find the real x and y for which this relation holds true. आप चेक करिए, डायरेक्ट क्वेश्चन है. What should we prefer? LCM. डायरेक्ट LCM. Yes, वो आइडिया लग जाता है दोनों की टर्म्स को देखकर. अब यहां मुझे अलग से रैशनलाइजेशन बिल्कुल नहीं जाना.
So x minus 1 into 3 minus iota plus y minus 1 into 3 plus iota, and this is iota. Usual method, open the bracket in the numerator. So 3x minus iota x minus 3 and minus minus plus iota. फिर प्लस में अब अगला ब्रैकेट ओपन कर देते हैं. 3y प्लस आयोटा y माइनस 3 माइनस आयोटा ओवर 3 इंटू 3 9 हो गया और ये +1 हो गया. सो दैट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. व्हेन आई ओपन दी ब्रैकेट, आयोटा से आयोटा कैंसल और अब लाइक टर्म कंबाइन करिए, मतलब 3x प्लस 3y और -3 एंड -3 -6. ये आयोटा के बिना वाला रियल पार्ट कर दिया एक साथ, और आयोटा के साथ क्या बचा अगर ध्यान से देखें, -x एंड आयोटा के साथ है +y और ओवर 10 था. क्रॉस मल्टीप्लाई वो आप एक ही स्टेप में कर सकते थे ऊपर ही. एनीवे ये टेन आयोटा और 10 आयोटा को लिख दिया 0 + 10 आयोटा, so that comparing the real and imaginary parts, रियल पार्ट और इसका रियल पार्ट है 0. एंड अनदर कंडीशन वुड बी आयोटा के कोफिशिएंट्स कंपेयर कर दिए, 3 कॉमन एंड कैंसल, सो x + y is 2 and -x + y is 10. I have two equations in two variables. Solve them. You will get the required values of x and y. सर रियल वैल्यूज से क्या मतलब है? एनी रियल वैल्यू, क्योंकि रैशनल इरैशनल कोई भी आंसर आ सकता है. यहाँ शायद इंटीजर आंसर आ रहा है व्हेन यू सॉल्व दीज इक्वेशंस, बट हो सकता था रूट की टर्म में आ जाता, √2 आ जाता, तो वो रियल के अंदर ही काउंट होगा ना. यस सर. इफ x + आयोटा y का क्यूब रूट, ये क्यूब रूट होता है 1/3 पावर जब लिखी है, इसका मतलब क्यूब रूट है. दिस इज गिवन एज a + आयोटा b. तो x + आयोटा y का क्यूब रूट इज a + आयोटा b. You are to prove the following two parts. So check it out. NCERT में ये पार्ट दिया है और एग्जाम्पलर में ये वाला पार्ट है, तो दोनों ही सिमिलर एक ही क्वेश्चन से देखिए कैसे होंगे. फर्स्ट स्टेप, क्यूबिक बोथ साइड्स. अगर यहाँ स्क्वायर रूट होता तब हम स्क्वायरिंग बोथ द साइड करते, क्योंकि क्यूब रूट है, सो लेट्स क्यूब बोथ द साइड्स, so that this will become a + iota b का whole cube. And that is the most important step of the question. इसके बाद बहुत सिंपल है. RHS a + b का होल क्यूब क्या होता है, मैं प्रॉपर वे में लिख रहा हूँ, a³ + 3a² into b + 3ab² + b³. तो ये 9th का सिंपल फॉर्मूला लगा दिया. लेट अस सिंप्लीफाई दिस फर्दर. a³ + 3a² b आयोटा, ये टर्म ध्यान से, आयोटा स्क्वायर इज -1,
तो -3ab² आ जाएगा। लास्ट टर्म में आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा और बी क्यूब पहले से ही था। कंबाइन दी लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स का मतलब रियल रियल एक साथ कर दीजिए एंड प्लस में आयोटा के साथ इमेजिनरी पार्ट। This is now about equality of two complex numbers. So comparing both the sides, x कितना आ गया? रियल रियल पार्ट इक्वेट कर दो एंड इमेजिनरी पार्ट्स मींस आयोटा के कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर दीजिए। So main part is done, getting the values of x and y. अब देखिए हम क्या करेंगे। कंसीडर फर्स्ट पार्ट में क्या था, LHS ले लेते हैं, x/a प्लस y/b, x की वैल्यू एंड y की वैल्यू। Just substitute these values. First term a common and cancel. Second term b common and cancel. सिंपल अलजेब्रा, a² प्लस 3a² दे देगा 4a² और ये आ गया -4b², 4 कॉमन a² माइनस b², which is equal to RHS. Hence proved. Second part complete in your homework. वहां बस बीच में माइनस करना है, तो ये टर्म के बीच में माइनस आ जाएगा, तो यू विल हैव द सिंपल आंसर। एनी डाउट टू एनीवन? प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। Excuse me, sir. Yes. So for the second part जो आपने ब्लू कलर से करवाया है, ब्लू कलर के पेन से आपने लिखा है वो सेम रहेगा? हाँ, खुद देखिए x/a माइनस y/b निकालना है ना, तो हमने क्या किया था फर्स्ट पार्ट के LHS में, हमने x/a प्लस y/b लिया था। सेकंड पार्ट में आपको बीच में माइनस चाहिए, तो सेकंड पार्ट का माइनस का मतलब ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा। सिंपल आंसर आ रहा है, आप चेक कर सकते हैं। ओके सर। चेक दिस आउट। अब इस तरह के 2-3 क्वेश्चंस आने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इफ रूट 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा इज a प्लस आयोटा b, you are to show this result. Okay, before I take this question, I just need to give certain formulas to you. So I'll do one thing, अपनी presentation में से मैं उन formulas को थोड़ा ऊपर ले आता हूँ, because they will make the questions quite easier and simpler to understand. Yeah. Check this out. Some results based on the modulus and conjugate of a complex number. So we already know the meaning of a modulus. We already know the meaning of a conjugate. But here are certain very important rules related to them.
It is advisable you know, understand all, but minimum जो requirement है वो मैं highlight कर रहा हूँ. If for any z1 and z2 as a complex number, these are the certain results which are most important. Remaining one can be asked in a verification. But the highlighted 5 results are very important. So first one is okay. Conjugate ka conjugate. Of course, I will revert back and get my own original complex number. 7th part में कह रहे हैं Z1 plus Z2 का conjugate. Z1 conjugate plus Z2 conjugate and 8th part negative. तो ये distribute हो जाता है. सेम वे प्रोडक्ट में भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और डिवीजन में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, प्रोवाइडेड सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉन जीरो. सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दीज 5 रिजल्ट्स और याद कर लीजिए साथ साथ क्विकली, बिकॉज वी आर गोइंग टू अप्लाई दीज इन दी upcoming questions, followed by a list of few more formulas. First, यहाँ का ये जो था ना फार्मूला, ये z conjugate is modulus of z का whole square. Very important formula. Second, you can easily understand z का मॉडुलस हो या उसका कॉन्जुगेट का मॉडुलस हो एंड सो ऑन. थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, one can easily understand. You can verify these results. But problem solving में मेन ये वाले 3 रिजल्ट्स के रिक्वायरमेंट है. Please make a note of these 5 plus 3 results separately. I am waiting for a minute. बाकी आप अपना स्लाइड से बाद में कर लेना. आई विल बी शेयरिंग दिस स्लाइड स्पेसिफिकली विद यू सो एज यू नीड टू लर्न दीज एज अ फार्मूला ऑल. So I believe you are having your notebook in front of you. Note कर लीजिए formulas. Let us now talk about this question. If root of 1 plus iota upon 1 minus iota is a plus iota b, you are to show this result. Given squaring both the sides. So 1 plus iota upon 1 minus iota will become a plus iota b ka whole square. Let me call this as equation 1. Taking conjugate both sides. There are 2 different methods in journal. I could have taken modulus both the sides also. So either you take the conjugate or modulus, hardly matter. So conjugate का मतलब क्या हो गया? ये आपके पास रिलेशन था. कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, सिर्फ इसके ऊपर एक तरह से ये आ जाएगा ना बार, ये और ये पूरे के ऊपर. एंड देन रिकॉल दी प्रॉपर्टी. बार जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा
न्यूमरेटर के साथ एंड डिनोमिनेटर के साथ। ये प्रॉपर्टी अभी बताया है। आरएचएस में एक और प्रॉपर्टी है, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट है, आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर कर दो या क्यूब कर दो या स्क्वायर रूट भी ले लीजिए, हार्डली मैटर, कॉन्जुगेट डिस्ट्रीब्यूट ऐसे हो जाता है। तो आयोटा की जगह माइनस आयोटा। तो दिस इज अनसेड प्रॉपर्टी जो आपके बुक में कहीं बताई नहीं है, बट वन नीड टू अंडरस्टैंड इट केयरफुली। इससे ये स्टेप कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर स्क्वायर है और कॉन्जुगेट लेना है उसका, तो आप कॉन्जुगेट का मतलब अंदर की तरफ a माइनस आयोटा बी कर दीजिए। क्यूब होता, फोर्थ पावर होती, स्क्वायर रूट होता, सेम मेथड इज एप्लीकेबल। ओके, ठीक है मृगा। अच्छा चलिए अब चेक करिए एलएचएस में क्या हो जाएगा। कॉन्जुगेट का मतलब 1 माइनस आयोटा और नीचे 1 प्लस आयोटा कर देगा, a माइनस आयोटा b का होल स्क्वायर। कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 2। एनी आइडिया क्या करें हम? 1 एंड 2 इक्वेशंस को क्या करना चाहिए? एनीवन? लुक एट द आंसर, उससे हिंट लगता है। Add. मल्टीप्लाई। और ये स्टैंडर्ड रूल समझ आ जाएगा मल्टीप्लाई करते ही क्या होगा। फर्स्ट का एलएचएस ये रहा, सेकंड का एलएचएस, ऑब्वियसली एलएचएस एलएचएस मल्टीप्लाई, और आरएचएस आरएचएस मल्टीप्लाई। व्हाट विल हैपन? यहां तो ये सिंपली 1 प्लस आयोटा से 1 प्लस आयोटा, 1 माइनस आयोटा से 1 माइनस आयोटा कैंसल, 1 बचेगा। और यहां a प्लस आयोटा b इंटू ए माइनस आयोटा b, और पूरे का होल स्क्वायर। सो दैट ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया? सिंपली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, और रूट ले लिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज 1 एज योर रिक्वायर्ड आंसर। आप चेक करिए, वैसे अगर मैं लॉजिकली बात करूं फिर से, यहां प्लस माइनस आएगा, conceptually it should be plus minus, but why the negative sign is rejected? Anyone? Why the negative will be rejected? Square of a number is always positive. पॉजिटिव में कोई चीज पॉजिटिव ऐड कर रहा हूं, it will be always positive. Hence negative value rejected, hence shown. Please make a note of it. Check out a very similar question from NCERT book.
ए प्लस आयोटा बी आपको गिवन है, इसके इक्वल। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, हार्डली 3 लाइनों में है ये। लेट मी कॉल दिस एज रिलेशन 1। एज यूजुअल, टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड्स, तो ए प्लस आयोटा बी का कॉन्जुगेट, आरएचएस का कॉन्जुगेट, ये आ जाएगा लाइक दिस। ये हो गया एलएचएस ए माइनस आयोटा बी, और न्यूमरेटर एज ऑलरेडी मेंशन्ड स्क्वायर भी हो तब कॉन्जुगेट अंदर पहुंच जाता है लाइक दिस। नीचे चेक करिए, आयोटा है ही नहीं, तो ये तो सिंपल यही सेम रहेगा। कॉल दिस एज 2, multiply 1 and 2, you have your answer. Complete in your homework. One can easily verify. Another very similar question. इसमें तो बल्कि बाइफरकेट करके बता दिया है। फर्स्ट पार्ट कैसे आया होगा, गिवन रिलेशन का कॉन्जुगेट ले लीजिए, यू विल गेट फर्स्ट पार्ट। इसे 1 कहा, इसे इक्वेशन नंबर 2 कहा। Multiply 1 and 2 will give you the second part. That's it. A very straightforward problem. Again, very similar question. Direct या square कर लीजिए, squaring both the sides. And now you take the conjugate. So taking conjugate both the sides and solve it. In fact, try in homework taking conjugate की जगह modulus both sides. Answer same आएगा. Check this out also. But I am expecting that you will be doing this by your own. Sarthak, please mute yourself. Yes. So as already mentioned in the beginning, either you take conjugate or you take modulus. Answer same आने वाला है. तो modulus में क्या हो जाता है, ये taking modulus both the sides. एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूं क्विकली, ये आ जाएगा। मॉडुलस में से ये प्रॉपर्टी है, ये स्क्वायर बाहर आ जाएगा। मॉडुलस की प्रॉपर्टी रिकॉल करिए, ऐसे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एंड व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ ए प्लस आयोटा बी, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो डेफिनेशन ही है। अप्लाई दिस डेफिनेशन and complete the question in your homework. And here is your homework, वो तो है ही, साथ में based on previous class work already जो हमने देखिए, ये क्वेश्चन मैं करवा ही चुका हूँ। इस तरह के सारे पार्ट हम कर चुके हैं। ये क्वेश्चन मैंने आज अभी सॉल्व करवाया है। So with for practice you will have other questions. Next, third question for your homework, express in the standard form. And the fourth one, find the multiplicative inverse. This is taken directly from your assignment, which is now already available in the Google Classroom. Time to mark your attendance. Everyone, quickly mark your attendance. And then you can leave the class. Thank you, sir. Have a good day, sir. Yeah, thank you. Yeah, thank you. Okay, thank you.
Everyone leave the class. Dhiren, Lavanya, Kanika, Nishtha, the class is over.